that is atomic orbital treatment of benzene. So modern atomic orbital treatment is a modern theory according to which every atom has atomic orbitals, and when atoms combine together they form molecular orbitals. और ये जो थेरी है ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है. The unusual behavior or unique behavior of benzene is also explained by this theory. Or in order to understand hybridization of the benzene, first of all we have to focus on the type of hybridization which is present in the benzene. You know, benzene ka structure, it's a hexagonal, regular hexagonal closely packed structure, and its formula is C6H6, and this formula indicates that there are 3 double bonds at alternate positions, and when a double bond is present in a molecule it indicates that it would have sp2 type of hybridization. So इसमें आप देखें कि sp2 hybridization है. अब you can see here कार्बन का atomic number 6 होता है, और कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, और इसके लिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसको हाइब्रिडाइज होना पड़ता है. अब हाइब्रिडाइजेशन में इफ़ 1s and 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, such kind of hybridization is called as sp2 hybridization. So you can see here these are the s orbitals, 2s orbital, and this is 2p orbitals, and 2p orbital and 1 sp orbital will hybridize, and they will form 3 orbitals are participating in hybridization, and 3 new hybridized orbitals are formed which are called as sp2, sp2 and sp2, and 1 p orbital will remain as such, and it will have more energy as you can see in this diagram, and the newly formed 3 sp2 orbitals will have same energy, but energy of p orbital is different and it has higher energy. So hybridization will take place in every carbon of benzene. Hybridization एक atomic phenomena होता है. It's not a molecular phenomena. It means it will take place in every carbon atom, and it means every carbon atom in benzene has sp2 hybridization, in which there are 3 orbitals, 3 sp2 hybrid orbitals. हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं, और इनकी आपस में बॉन्डिंग इस तरह है. ये देखें, ये कार्बन है, इसके पास ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीसरा. अच्छा जी, ये 2 sp2, ये देखें, दिस इज sp2, दिस इज sp2, और ये दूसरी कार्बन के sp2 के साथ क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड ये इस साइड वाली जो कार्बन है उसके साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका और इसका, ये दोनों sp हाइब्रिड, sp2 hybrid and sp2 hybrid will overlap with each other and they will form sigma bond. Similarly, 1 sigma bond is formed with hydrogen. Hydrogen have 1s orbital and there is no hybridization in hydrogen. So it has 1s orbital. By overlapping of this 1s orbital and sp2 orbital, sigma bond is formed. So this kind of distribution, this kind of bonding is present in all type of carbons. Hydrogen, sigma bond, this is again one carbon, sp2,
and this is sigma bond. All right, one sp2 and hydrogen, sigma bond, again here sp2, and this is sigma bond, it is sp2 and hydrogen, 1s, it is again sigma bond, and 1 sp2 and 1 sp2. So you can see framework of benzene ring is in one plane, ये वन प्लेन में है, और इनके दरमियान जो एंगल है ये दिस इज 120 डिग्री विच इज इंडिकेटेड बाय एक्सरे स्टडीज. ओके, अब ये वन प्लेन sp2 ऑर्बिटल्स आर इन वन प्लेन like this book. This is hexagonal. You can suppose it hexagonal. This is a hexagonal framework of carbon atoms, and hydrogen is at corners. 6 hydrogens are present. Okay, one p orbital is left on each carbon, and this p orbital is at right angle. If these are 4 corners, 1 2 3 4, and one is at this point and second is at this point, you can see p orbital is at right angle. Okay, ये इसके 90 डिग्री पे है, हाफ ऊपर और हाफ नीचे. अब क्या होगा कि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं दे विल अरेंज. अब अगर इस फ्रेमवर्क को हम इस तरह इंडिकेट कर लें, ये जो हमारा फ्रेमवर्क बन गया होगा. अब इस फ्रेमवर्क के ऊपर राइट एंगल पे क्या है, p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. 6 कार्बन है और हर कार्बन का एक p ऑर्बिटल जो है इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सो इट इज प्रेजेंट एट राइट एंगल. ओके, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब वी नो देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजीशन. लें जी, दे विल ओवरलैप साइडवाइज लाइक दिस. So we can see there are 3 pi bonds. अब sigma bond तो already थे जी, हमारे पास 6 sigma bonds हैं. Now 3 pi bonds are formed. But situation is not like this. अब ये जो 3 double bonds हैं which are at alternate positions, when double bond or triple bond is present at alternate position, we call it conjugation. इसको हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं. Okay. When there is a conjugation in a molecule, अब conjugation के नतीजे में a new phenomena takes place which is new for you, and this is called as delocalization. It is very important to understand what is delocalization. Students, if you have a double bond, if you have a long chain, you have a structure propene like this, CH2, CH and CH3. This is propene. अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, ये जो डबल बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons belong to carbon 1, carbon 2, and this is carbon 3. These belong to the electrons of double bond or pi bond belong to carbon 1 and 2 only. और अगर इसको हम प्रोटीन और ब्यूटीन भी ले लें, here again the electrons of the double bond belong to carbon 1 and 2 only, so this bond is localized.
between two carbon atoms. But when there is a conjugation, for example, conjugation straight chain structures में भी हो सकती है. If you have two butene, here it is single bond, ये जी. अगर आपके पास टू ब्यूटीन है तो यहाँ पे क्या होगा, here is conjugation, और conjugation की वजह से अब आप ये देखें डबल बॉन्ड इस तरह है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. अब कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, आपका बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं रहेगा. लोकलाइज्ड जो कि इन दोनों में है, लोकलाइज्ड नहीं रहेगा. क्या हो जाएगा, डी लोकलाइज. अब डी लोकलाइज को समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज डी लोकलाइजेशन? डीलोकलाइजेशन में होता ये है कि देखें, व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ दिस काइंड, ऑल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ कार्बन लाइक दिस कार्बन 1 and 2. अब ये वाला पाई बॉन्ड नंबर 1 जो है, दिस इज पाई बॉन्ड 2, ये नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड 1 के 1 and 2 में सर्कुलेट करें और पाई बॉन्ड 2 वाले इलेक्ट्रॉन 3 और 4 में ही टाइम स्पेंड करें. अब क्या करेंगे कि दे विल शेयर विद ईच अदर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह स्प्रेड हो जाएगी. क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी. ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखें कि जिस तरह आपके गेस्ट आते हैं और आप उन्हें गेस्ट रूम में बिठाते हैं, लेकिन अगर आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा हो जाती है तो वो गेस्ट दे कैन एंटर इन योर बेडरूम, इन योर लाउंज, और क्या हुआ, यू डिड शेयरिंग विद देम. तो इसी तरह क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है दे विल शेयर विद ईच अदर, और एक अब बॉन्ड लोकलाइज नहीं रहा बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स एंड दीज टू कार्बन एटम्स. अब ये सारी कार्बन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव, और इलेक्ट्रॉन इस तरह अपना एक कंटिन्यूस शीट बना लेंगे, एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन. जैसे लोकल कहते हैं मुकामी, और इसका अपोजिट क्या होता है, इंटरनेशनल. सो इस तरह ये जितने भी मौजूद हैं सबसे बिलोंग करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सेम सिचुएशन विल रिजल्ट हेयर, एंड ड्यू टू द कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन विल टेक्स प्लेस. और ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये वाला, ये क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दे विल शेयर विद ईच अदर इन सच अ वे ये जी. और अगर इसको हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, अब ये जो फ्रेमवर्क है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये कार्बन 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 कार्बन, और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन. बेटा ये कार्बन एटम्स का फ्रेमवर्क था, एंड दीज आर द पाई ऑर्बिटल्स विच आर एट राइट एंगल. और अब ये देखें, ये पाई ऑर्बिटल ये दो साइड पे ओवरलैप करेंगे, और ये इस तरह ओवरलैप करेंगे, और ये इस तरह ओवरलैप करेंगे, और यहाँ बन गया एक पाई बॉन्ड, एक यहाँ बन गया पाई बॉन्ड, और एक यहाँ बन गया पाई. अब आपको बताया था कि पाई बॉन्ड जब अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन. और कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन का इफेक्ट होता है. व्हेन p ऑर्बिटल्स आर एट अल्टरनेट पोजीशन एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अब क्या होता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग होने की वजह से इन दो कार्बन एटम्स पर ये लोकलाइज नहीं रहेंगे. मींस कि अब ये जो कार्बन 1 और 2 है और ये 3 है, तो कार्बन 1 का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता
इधर भी आ जाएगा और एक कंटिन्यूस शीट बन जाएगी। क्या बन जाएगा जी? ये कंटिन्यूस शीट बन जाएगी ये, ठीक है, इस तरह। ये और ये कंटिन्यूस शीट को आप ये देख सकते हैं लाइक दिस। ये जो ब्लू में है दिस इज फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन एटम्स और सिग्मा बॉन्ड था, और ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं, अब ये क्या हुआ कि अब आप ये देखें, ये सिचुएशन के लोकलाइज्ड। अब दिस इज नॉट द सिचुएशन हियर, लोकलाइज नहीं रहे, दे विल फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। ये देखें इस तरह, और ये यहाँ पे कंटिन्यूस शीट बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है जी। और कंटिन्यूस शीट को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन की वजह से अब क्या प्रोड्यूस होगा? रेजोनेंस। सो बेंजीन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, और ड्यू टू द रेजोनेंस बेंजीन मॉलिक्यूल इज स्टेबल, और इसी वजह से ये जो है वो एडिशन रिएक्शंस रेडली नहीं देता। It do not want to disturb its stability by the resonance. Okay ji, hope you understand. Thank you very much.